ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ہر طرف میں اپنے گھر پر پرسکون انداز میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا جب اچانک میرا فون بجا۔ میں نے دیکھا میرے ددیال سے کال آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے فون اٹھایا، سامنے والے کی بات سن کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ میرے دادا ابو کا ایک دم سے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے انتقال کی خبر بہت بڑی خبر تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو میں ان سے مل کر آیا تھا، تب وہ بالکل صحیح سلامت تھے۔ اب پتہ نہیں انہیں ایک دم سے کیا ہو گیا تھا۔ مجھے تو چند لمحوں کے لیے اس خبر پر یقین نہیں آیا۔ جب میں کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو میں جلدی سے امی کو آوازیں دینے لگا۔ یہ خبر سن کر امی کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی۔ وہ یک دم ہی رونے لگی اور پھر آہستہ آہستہ کر کے تمام گھر والوں کو یہ خبر پہنچ گئی۔ ہر کوئی افسردہ تھا، کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ لہٰذا گھر میں جلدی سے کشمیر جانے کی تیاریاں ہونا شروع ہو گئیں۔ ہمارا ددیال کشمیر میں تھا، اور وہ کشمیر کے ایک ایسے علاقے میں تھا جو بہت ہی پرانا اور سنسان علاقہ تھا، جہاں پر رات کے وقت گاڑی چلانا سخت ممنوع تھا۔ کوئی بھی انسان رات کے وقت اس راستے سے نہیں گزرتا تھا، کیونکہ وہ راستہ بہت ہی خطرناک تھا اور وہاں پر بہت سی آتماؤں کا قبضہ تھا۔ کہتے ہیں کہ پہلے یہ شمشان گھاٹ ہوا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہاں پر بہت ہی زیادہ روحیں موجود تھیں۔ لیکن مجھے ان باتوں پر یقین نہیں تھا۔ جب بھی میرے کزن مجھے اس بارے میں بتاتے تو میں ان کا مذاق اڑاتا تھا اور کہتا تھا ایسا حقیقی دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ صرف اور صرف تم لوگوں کا وہم ہے، یا پھر ان لوگوں کی باتیں ہیں جو لوگ تمہیں بے وقوف بنا رہے ہیں۔ میں تو کبھی بھی ان باتوں پر یقین نہ کروں۔ جبکہ میری بات سن کر کزن خاموش ہو جاتے اور مجھ سے زیادہ بحث نہیں کرتے تھے۔ آج چونکہ مجھے موقع مل گیا تھا رات کے وقت سفر کرنے کا، اسی وجہ سے میں یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا آج ویسا ہی ہوتا ہے جیسا میں نے سنا ہوا تھا، یا وہ صرف اور صرف جھوٹ ہے۔ جبکہ امی رات کے وقت سفر کرتے ہوئے بہت ڈر رہی تھی۔ جب میں نے امی سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنی جوانی میں بھی ایک بار رات کے وقت سفر کیا تھا، لیکن ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کو وہ آج تک نہیں بھلا پا رہی۔ واقعی امی اپنی شکل سے بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ جب میں نے امی سے اس واقعے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ رات کا وقت تھا، یہی کوئی رات کے 2 بج رہے تھے کہ اچانک ہی ان کی گاڑی راستے میں ہی رک گئی۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید گاڑی خراب ہو گئی ہے، لیکن انہوں نے جب گاڑی سے اتر کر دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ گاڑی کے سامنے ایک بہت ہی خوفناک چیز بیٹھی ہوئی تھی، جو کہ انہیں اپنی سرخ نگاہوں سے دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ اچانک ہی وہ چیز اٹھی اور جلدی سے میرے ابو کی طرف بھاگی، لیکن ابو جلدی سے گاڑی کے اندر چلے گئے۔ وہ چیز زور زور سے گاڑی کے شیشے کو بجانے لگی تھی۔ دوسری طرف امی نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ ابو گاڑی چلانے کی بھی کوشش کر رہے تھے، اور پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ گاڑی سٹارٹ ہو گئی، لیکن وہ چیز ابھی تک گاڑی کے ساتھ ہی چمٹی ہوئی تھی۔ اچانک ہی گاڑی کا شیشہ ٹوٹنے لگا۔ قریب تھا کہ گاڑی کا شیشہ ٹوٹ جاتا، لیکن گاڑی اس شمشان گھاٹ کی دہلیز سے باہر نکل آئی، جس کی وجہ سے ابو اور امی کی بچت ہو گئی تھی۔ امی نے کہا کہ جب انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ خوفناک چیز اسی حالت میں کھڑی ان کی گاڑی کو گھور رہی تھی۔ امی بتاتی ہیں کہ میں اگر اس وقت آیت الکرسی نہ پڑھتی ہوتی تو شاید ابھی ہم یہاں تمہارے سامنے موجود نہ ہوتے، بلکہ تم ہی اس دنیا میں نہ آئے ہوتے۔ وہ خوفناک چیز ہمارا وہیں پر کام تمام کر دیتی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی وہاں پر لوگوں کے ساتھ خوفناک واقعات پیش آ چکے ہیں۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بھی وہاں سے کوئی گاڑی گزرتی ہے تو وہ اکثر خراب ہو جاتی ہے، اور پھر صبح اس گاڑی کے سواروں کی صرف لاشیں ہی ملتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے اب وہاں رات کے وقت سفر کرنا چھوڑ دیا ہے۔
लिहाजा बेहतर यही है कि तुम भी मेरी बात मानो और हम सुबह के वक्त ही यहाँ से निकलेंगे। अम्मी की बात सुनकर मैंने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया, क्योंकि मुझे बस किसी तरह से इस राज से पर्दा उठाना था। न जाने क्यों मुझे ये लग रहा था कि अम्मी भी मुझसे झूठ बोल रही हैं। हकीकत में ऐसी कोई भी बात नहीं, लेकिन अम्मी के सामने मैंने ये नहीं कहा, कहीं ऐसा ना हो अम्मी मेरी बात का बुरा मना जाए। मैंने एक नज़र अपनी बहन की तरफ देखा जो मुसलसल रोए जा रही थी। उसको रोता देखकर मेरे दिल को कुछ हुआ। मैं तेज़ी से उसके पास गया और उसे तसल्ली देते हुए कहने लगा, फ़िक्र मत करो, मुझे यकीन है कि दादा अबू एक बहुत ही अच्छी जगह पर होंगे, तुम बस उनके लिए दुआ करो। मैंने उसे तसल्ली दी और उसे समझाया, जिसकी वजह से उसने रोना बंद कर दिया और हाथ में तस्बीह लेकर दादा अबू के लिए पढ़ने लगी। जब दूसरी तरफ मेरा ध्यान अब उस शमशान घाट की तरफ अटका हुआ था। मेरे लाख कहने के बावजूद भी अम्मी रात के वक्त वहाँ से निकलने के लिए तैयार ना हुई। जब मैंने ज़्यादा ज़िद की तो अम्मी ने भी बहाना बना दिया कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, उनमें हिम्मत नहीं है कि वो इस वक्त सफ़र कर सकें। लिहाजा अगर मैंने जाना है तो मैं चला जाऊं, लेकिन वो मेरे साथ अभी इस वक्त नहीं जाएंगी। मजबूरन मैं भी रुक गया, क्योंकि यूं अम्मी को नाराज़ छोड़कर मैं नहीं जा सकता था। लेकिन मैंने फ़ैसला किया था कि वहाँ से रात को ही निकलूँगा और इस बार मैं अकेला ही आऊँगा, ताकि अगर ऐसी वैसी कोई बात होती भी है तब भी मेरे अम्मी अब्बू महफूज रहें, उन्हें कुछ भी ना हो। मुझे अपना ख़ानदान बहुत अजीज़ था, मैं अपने ख़ानदान से बहुत मोहब्बत करता था और ये बात सब लोग ही जानते थे। लिहाजा सुबह के वक्त हम लोग गाड़ी में सवार होकर गांव के लिए निकल पड़े। रास्ते में शमशान घाट के इलाके से जब हमारी गाड़ी गुजर रही थी तब मैंने अम्मी से पूछा कि आपने किस जगह पर उस अजीबो-गरीब औरत को देखा था। मेरी बात सुनकर अम्मी के चेहरे पर एक साया आकर लहराया। उनका चेहरा यकदम ही लाल पड़ गया। यूं लग रहा था जैसे उन्होंने दोबारा से ही वो औरत देख ली हो। वो बहुत खौफजदा लग रही थी। एक पल के लिए तो मुझे लगा जैसे अम्मी ने मुझे सच ही बताया है। फिर वो मुझे कहने लगी, मैंने यहीं थोड़ी दूर ही वो औरत देखी थी। फिर जब उन्होंने अब्बू को आवाज़ दी तो अब्बू ने उनकी बात भी नहीं सुनी। यूं लग रहा था जैसे अब्बू इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहते। वो बहुत संजीदगी के साथ गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मुझे अब्बू ने कहा कि अब तुम खामोशी से बैठ जाओ, बेहतर यही है कि तुम दोबारा इस बारे में कोई सवाल ना करो, क्योंकि फ़िलहाल हम उन्हीं के इलाके में हैं। मुझे डर है कि कहीं वो हमें दोबारा नुकसान ना पहुंचा दे। उस वक्त तो हम अकेले थे, लिहाजा हमें ज़्यादा ख़तरा नहीं था, लेकिन अब तुम लोग भी हमारे साथ हो। हमें अपनी जानों से ज़्यादा तुम लोगों की जानें अजीज़ हैं। लिहाजा मैं अभी खामोश हो गया, लेकिन जिस तरफ मेरी अम्मी ने इशारा किया था मैं उस तरफ देखने लगा। अचानक ही मुझे वहाँ पर कोई खड़ा हुआ महसूस हुआ। मैंने जब थोड़ा गौर करके देखा तो वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, जबकि उसके बाल उसके चेहरे को ढांपे हुए थे। ये देखकर एकदम से मेरा दिल कांप उठा। मैंने जल्दी से अपनी नज़रें हटाईं। जब मैंने दोबारा वहाँ पर देखा तो अब वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये देखकर मैं हैरान रह गया। फिर मैंने उसे अपना वहम करार दे दिया, लेकिन वो लड़की अभी तक मेरे जहन में घूम रही थी और एक अजीब सी दहशत थी जो मेरे दिल में बैठ गई थी। पहले मुझे ये खौफ महसूस नहीं हो रहा था जो अब महसूस हो रहा था। मैं अपने आप को समझाने लगा और तसल्ली देने लगा कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। रात के वक्त तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, लिहाजा बेहतर यही है कि अभी खुद को परेशान मत करो और रात होने का इंतज़ार करो। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हर तरफ रोना धोना मचा हुआ था। औरतें सहन में बैठी बैन कर रही थीं। कुछ और औरतें अपना सीना पीट रही थीं। ये देखकर मुझे गुस्सा आ गया, क्योंकि मैयत के पास ये सब कुछ करना बिद्दत था। मैं उन्हें समझा समझा के थक गया था, लेकिन मजाल है जो उन्होंने मेरी बात मानी हो। मैंने अम्मी के कान में सरगोशी की कि खुदा के लिए अम्मी, आप ये सब कुछ नहीं करना। ये सुनकर अम्मी ने मुझे गुस्से से घूरा और मुझे चपत लगाते हुए कहने लगी, तुम्हें मैं ऐसी लगती हूँ?
इस कदर संजीदा माहौल में भी मुझे हंसी आ गई, लेकिन फिर मैं दोबारा से संजीदा हो गया, क्योंकि मेरा नुकसान छोटा नहीं था, बल्कि ये बहुत बड़ा नुकसान था। मुझे अपनी जान से भी प्यार करने वाले मेरे दादा अब्बू इस दुनिया से चले गए थे। मैं अपने कज़न के पास आया और उसे दादा की वफ़ात के बारे में पूछने लगा। वो खुद भी हैरानगी का इजहार करने लगा और कहने लगा, मुझे खुद पता नहीं है दादा अब्बू को एकदम से क्या हो गया। शाम तक ये हमारे साथ अच्छे भले बैठे बातें कर रहे थे। हम लोगों ने हर तरह की बातें की। उसके बाद ये घर से बाहर निकल गए। रात के वक्त जब ये घर आए तो काफ़ी खामोश थे। उसके बाद वो अपने कमरे में चले गए। हमने उनसे मिलने की और उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो ना तो घर के किसी फर्द से बात कर रहे थे और ना ही किसी से मिल रहे थे। ये बहुत ही हैरानगी की बात थी। उन्होंने अंदर से अपना कमरा भी लॉक किया हुआ था। अम्मी ने मुझे दादा अब्बू को खाने के लिए बुलाने के लिए भेजा। मैं दादा अब्बू को बुलाने के लिए गया और उन्हें आवाज़ दी, लेकिन दूसरी तरफ से मुझे कोई भी जवाब मौसूल ना हुआ। मैंने 2-3 बार पुकारा, तब भी गहरी खामोशी ने मेरा इस्तकबाल किया। फिर मुझे यकदम ही फिक्र होने लगी और मेरा दिल घबराने लगा। जब मैं दरवाज़ा तोड़कर दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ तो दादा अब्बू का वजूद साकित पड़ा था। उनकी रूह इस दुनिया से परवास कर चुकी थी। ना सिर्फ मैं बल्कि सारे घर वाले भी हैरान और परेशान थे, और फिर काफ़ी देर तक हमें उनकी मौत का यकीन नहीं आया। हमें यही लग रहा था कि दादा अब्बू थोड़ी देर बाद उठ जाएंगे और हमसे बातें करने लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें दोबारा आंसुओं से भर गईं और मेरा दिल दादा अब्बू के लिए उदास हो गया। मैं सोचने लगा कि ना जाने दादा अब्बू को ऐसा क्या हो गया था कि यूं अचानक उनकी जान चली गई। थोड़ी देर गुजरी तो दादा अब्बू को दफनाने का शोर उठ खड़ा हुआ। उन्हें इतनी जल्दी दफनाने पर मैं हैरान हुआ। जब मैंने अपने कज़न से दोबारा पूछा तो वो मुझे कहने लगा कि मगरिब से पहले ही हम यहाँ पर मैयत को दफना देते हैं, क्योंकि मगरिब के बाद दोबारा यहाँ की रूहें सबको तंग करने के लिए आ जाती हैं। ऐसे में अगर कोई मैयत को दफनाने के लिए जाए तो उसे बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसकी ये बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मेरा दिमाग घूमने लगा। न जाने उन लोगों ने अपनी मर्जी से कौन सी कहानियाँ घड़ी हुई थी। मैंने उसे डांटा और समझाया, लेकिन उसने मेरी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया और मुझे कहने लगा, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ पर नहीं रहते, यहाँ पर मैं रहता हूँ। तुम यहाँ पर सिर्फ मुझे 2 हफ्ते गुजार कर दिखाओ। इन 2 हफ्तों के बाद मैं तुमसे पूछूंगा कि जो हम लोग करते हैं वो ठीक है या गलत, और जो बात हम रूहों के बारे में करते हैं वो किस हद तक सच है। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया। वो वाकई ठीक कह रहा था। यहाँ पर वो लोग रहते थे, मैं नहीं रहता था। इसी वजह से मुझे अपनी मर्जी से अंदाजे नहीं लगाने चाहिए थे। लेकिन इस बार तो मैंने फैसला किया हुआ था कि चाहे कुछ भी हो जाए, पता लगा कर ही रहूँगा कि आखिर माजरा क्या है। और फिर 2 दिनों के बाद सुबह के वक्त मैंने अपने अम्मी और अब्बू और बाकी बहन भाइयों को यहाँ से भेज दिया। कोई भी जानने के लिए राज़ी नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने उन्हें ये कहकर भेज दिया कि पीछे मैं सब कुछ संभाल लूँगा। आपको अभी यहाँ से चले जाना चाहिए, यही बेहतर है। जब अम्मी यहाँ से जा रही थी तो उन्होंने मुझे एक कमरे में आने के लिए कहा। मैं अम्मी की बात सुनने के लिए कमरे में चला गया। अम्मी ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम मुझसे वादा करो कि तुम रात के वक्त बाहर नहीं निकलोगे। अम्मी की बात सुनकर मैं चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। मैं अम्मी से ये वादा कैसे कर सकता था, जबकि मैं यही काम करने के लिए इस जगह पर आया था। लिहाजा अम्मी को तसल्ली देते हुए मैं कहने लगा, अम्मी आप फिक्र मत करें, मैं रात के वक्त यहाँ से नहीं निकलूँगा। लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि हालात ऐसे बन जाते हैं कि इंसान को बाहर निकलना ही पड़ता है। ऐसे में अगर मैंने आपसे वादा किया तो वो वादा टूट जाएगा। मेरी बात सुनकर अम्मी रोने लगीं और मुझे गले से लगा लिया। अम्मी के रोने से मैं परेशान हो गया। अम्मी बार बार मुझे यही कह रही थी कि बेटा, मेरे पास तुम ही मेरा कुल असासा हो, कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना
जिसकी वजह से मैं तुमसे दूर हो जाऊं या तुम मुझसे दूर हो जाओ। अम्मी की बात सुनकर मैंने उन्हें जल्दी से खुद से अलग किया और उनके माथे को चूमते हुए बोला, अम्मी आप मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाएं, मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। आप बस आराम से यहाँ से जाएं और वहाँ का निज़ाम देखें। वैसे भी बहन भाइयों की तालीम की वजह से काफ़ी नुकसान हो गया है। उसके बाद ने उन्हें अम्मी का ध्यान दोबारा से छोटे बहन भाइयों की तरफ लगा दिया और अम्मी से उनके बारे में बातें करने लगा और अम्मी को ये भी कह दिया कि मैं 2 हफ्तों के बाद वापस आऊँगा। जाते हुए अम्मी काफ़ी फिक्रमंद नज़र आ रही थी और बार बार मुझे यही हिदायत कर रही थी। उसके बाद उन्होंने मेरे कज़न को भी कहा कि तुम इस पर नज़र रखना कि ये यहाँ से कहीं ना जाए। लिहाजा कज़न ने भी अम्मी को तसल्ली दी। उसके बाद अम्मी थोड़ी मुतमईन हुई और वहाँ से चली गई। मेरा कज़न अम्मी को छोड़ने के बाद मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, अब मुझ पर यह जिम्मेदारी है कि मैं तुम पर नज़र रखूँगा, लिहाजा बेहतर यही है कि मुझसे छुपकर कोई भी काम करने की कोशिश नहीं करना, वरना उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। अभी ही मैं तुम्हें ये बात समझाए दे रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मैं हंसने लगा और कहने लगा, अब क्या तुमने मुझे इतना बच्चा समझा हुआ है? उसने नफ़ी में सर हिलाया जैसे कह रहा हो कि तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बाद मैं दादा अब्बू के कमरे में चला गया और वहीं लेट गया। उनके कमरे में मुझे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। उसके साथ साथ वहाँ पर एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी जो मुझे दादा अब्बू की मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। न जाने वहाँ पर लेटे लेटे ही कब मेरी आंख लग गई। उस रात मैंने बहुत ही अजीब व गरीब ख्वाब देखा। मैंने देखा कि दादा अब्बू एक बहुत ही बड़े जंगल के बीचों बीच खड़े हैं और वहाँ पर फूट फूट कर रो रहे हैं, जबकि मैं उनके करीब ही खड़ा उनको हैरानी से देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि दादा अब्बू को एकदम से क्या हो गया और वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उनकी तरफ बढ़ सकूं। एक अजीब सी कुव्वत है जो मुझे रोक रही है। फिर अचानक ही मुझे अपने नाम की पुकार सुनाई देती है। जैसे ही मैं पलट कर देखता हूँ तो वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने होते हैं, जबकि उसके बाल उसके चेहरे को ढांपे हुए होते हैं। ये वही लड़की थी जो मैंने रास्ते में देख चुका था और उसे मैंने अपना वहम करार दिया था। लेकिन ये लड़की अब मेरे ख्वाब में मैं दोबारा देख रहा था। उस लड़की को मैं वहाँ देखकर हैरान हो जाता हूँ। वो लड़की भी दादा अब्बू की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है और फिर उनके करीब जाकर रुक जाती है। अचानक वो दादा अब्बू के कंधे पर हाथ रखती है। उसके बाद ही दादा अब्बू अपने दिल पर हाथ रख लेते हैं और मुझे उनकी घुटी घुटी चीखें सुनाई देने लगती हैं। यूं लग रहा है जैसे दादा अब्बू के दिल में दर्द उठ गया हो और फिर मेरे देखते ही देखते वो नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं। ये सब देखकर मैं परेशान हो जाता हूँ। मैं दादा अब्बू के पास जाने की कोशिश करता हूँ लेकिन जा नहीं पाता। इस दौरान वो लड़की दोबारा से मेरे पास आना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे वो मेरे पास आती जाती है वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जाती है और एक अजीब सी दहशत चारों तरफ फैलने लगती है। मैं उसे रोकना चाहता हूँ और उससे दूर भागना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ भी कर नहीं पाता। दूसरी तरफ दादा अब्बू का वजूद मुझे तकलीफ़ पहुँचा रहा होता है और फिर अचानक ही वो लड़की मेरे करीब पहुँच जाती है। उसके एकदम से वहाँ से गायब होकर अपने करीब पहुँचने पर मेरे दिल की धड़कन दोबारा से बढ़ जाती है और यूँ महसूस होने लगता है जैसे अभी मेरा दिल मेरा सीना चीर कर बाहर निकल आएगा। मुझे उस लड़की के करीब से एक अजीब सी बू आती है और फिर अचानक ही मुझे उस लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, मुझे तुम बहुत पसंद आए हो, मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूँगी। उसकी ये बात सुनकर मैं परेशान हो जाता हूँ। मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो, लेकिन वो मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं देती और फिर अचानक ही वो अपने हाथों से अपने चेहरे के ऊपर से अपने बाल हटाने लगती है। अभी उसका थोड़ा सा ही चेहरा मैं देखता हूँ कि मुझे लगता है कि सातों आसमान मेरे सर के ऊपर आकर गिर गए हैं। वो बहुत ही खौफनाक और जला हुआ चेहरा होता है। यूं लगता है जैसे किसी ने उसके चेहरे को जलाया हो।
उसके साथ ही मेरे वजूद को एक झटका लगा और मैं अपने बिस्तर पर उठ बैठा। वो बहुत ही अजीब व गरीब और डरावना ख्वाब था। मेरा पूरा जिस्म उस वक्त खौफ से कांप रहा था, जबकि बिस्तर पसीने से भीग गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था आखिर उस ख्वाब में उस लड़की का दादा अब्बू के साथ क्या ताल्लुक है, उन दोनों को एक साथ क्यों देखा है। हजारों तरह के सवालात थे जो मेरे जहन में मचल रहे थे, लेकिन मेरे पास उनमें से भी एक का सवाल का जवाब नहीं था। मैं इसी शशोपंच में मुब्तला था जब अचानक मेरे कज़न कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन मेरी हालत देखकर वो कमरे के बीच ही रुक गया और फिक्रमंदी से कहने लगा, क्या हो गया, इस कदर पसीना पसीना क्यों हुए हो। उसकी बात सुनकर मैंने नफ़ी में सिर हिलाया और तसल्ली देते हुए कहने लगा, कुछ भी नहीं हुआ, बस एक डरावना और अजीबो गरीब ख्वाब देख लिया था। मेरी बात सुनकर वो तेज़ी से मेरे पास आया और मुझसे ख्वाब के बारे में पूछने लगा। फिर मैंने उसे थोड़ी देर पहले वाला ख्वाब सुना दिया। मेरी बात सुनकर वो यकदम खामोश हो गया। फिर कहने लगा, तुम मानो या ना मानो, लेकिन मुझे लगता है कि दादा अब्बू की मौत उसी लड़की की वजह से हुई है। न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि दादा अब्बू रात के वक्त उस जंगल की तरफ चले गए थे। इसी वजह से जब वो वापस आए थे तो काफ़ी डरे हुए थे। ज़रूर उन्होंने उस जंगल में उस लड़की को देख लिया और फिर डर की वजह से उनका दिल बंद हो गया। उसकी बात सुनकर मैंने चंद लम्हे उसके चेहरे को देखा और फिर ऊंची ऊंची आवाज़ में हंसने लगा। मैं उसके एकदम से कहानी बनाने पर हैरान रह गया था। आखिर कोई इंसान इस कदर टैलेंटेड कैसे हो सकता है। मेरे यूं हंसने पर वो बुरा मना गया और कहने लगा, बेटा मैं तुमसे उस दिन पूछूंगा जिस दिन तुम्हारे सामने भी ये लड़की आएगी। वो मुंह बनाते हुए कहने लगा। उसकी बात सुनकर मैंने भी मज़ाहिया अंदाज में कहा, लेकिन जिस दिन वो लड़की मेरे सामने आएगी उस दिन तो वो मेरा दिल भी अपने साथ ले जाएगी, फिर तुम मुझे कैसे देखोगे। मेरी बात सुनकर उसने मुझे कहा कि फजूल मत बोलो, खामोश हो जाओ। तुम इन बातों को जितना मजाक में ले रहे हो ये उस हद तक मजाकिया नहीं है। लेकिन मुझे उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं था और ये सच था। अभी भी जो मैंने ख्वाब देखा था उसके बारे में मेरा यही ख्याल था कि ये ख्वाब ज़्यादा सोचने की वजह से आया है, क्योंकि दिन के वक्त मैं उस लड़की को सोचता रहा था और फिर रात के वक्त मैं दादा अब्बू को सोचता रहा हूँ। इसी वजह से ये दोनों चीज़ें भी हो गई हैं और फिर मुझे ये डरावना ख्वाब आ गया। ये कहकर मैंने ख़ुद को तसल्ली दी, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल भी न जाने क्यों कांप रहा था। उसके बाद मैं तेज़ी से बाहर की तरफ निकल गया था कि ठंडी हवा में गहरे गहरे सांस ले सकूं। थोड़ी देर बाद मेरी तबीयत दोबारा नॉर्मल हुई तो मैं दोबारा घर के अंदर आ गया और खाना खाने लगा। अभी मैं तमाम घर वालों के साथ बैठकर खाना खा ही रहा था जब अचानक मुझे एक आदमी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने घर वालों की तरफ देखा, वो भी मेरी तरफ ही देख रहे थे। यानी ये आवाज़ सिर्फ मुझे सुनाई नहीं दे रही थी बल्कि सब लोगों को सुनाई दे रही थी। मैं तेज़ी से अपनी जगह से उठा कि मेरी दादी ने जल्दी से मुझे बिठा दिया और कहने लगी कि अपनी जगह से बिल्कुल भी ना हिलना, वरना वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। उनकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया और उनसे पूछने लगा, आप किस बारे में बात कर रही हैं, कौन नहीं छोड़ेगी। तब उन्होंने मुझे बताया कि हो ना हो ये आदमी भी डर गया है और ये अपने साथ उसी बदरूह को ले आया है। जब तक अब ये बदरूह उसकी जान नहीं लेगी वो आदमी डरता ही रहेगा। मैंने उसे कहा कि बदरूह नाम की कोई चीज़ भी नहीं होती। जो इंसान मरता है उसकी रूह अल्लाह के पास चली जाती है और फिर कहानी ख़त्म हो जाती है। मेरी बात सुनकर दादी ने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया और मुझे समझाते हुए बोली, बेटा ये हम मुसलमान कहते हैं क्योंकि हम मुसलमान मैयत को गुस्ल देकर उसे पाक साफ़ करके उसका जनाजा पढ़ के दफना देते हैं, लेकिन हिंदू ऐसा नहीं करते। पहले ज़माने में और भी वो अपने मुर्दों को जला देते हैं। और फिर तुम खुद सोचो, ऐसे लोग जिनको ना सिर्फ जलाया गया हो बल्कि जलाने से पहले उनके साथ जुल्म भी किया गया हो, फिर बाद में उनकी रूहें भटकती रहती हैं। यही वजह है कि यहाँ के लोग रात के वक्त बाहर नहीं निकलते, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा है कि ये सारी खौफनाक चीज़ें किस हद तक जालिम हैं। ये
किसी इंसान के साथ चिमट जाएं तो उस वक्त तक उसका पीछा नहीं छोड़ती जब तक वो उसे कब्र के अंदर तक ना छोड़ दें। दादी अम्मी की बात सुनकर मैं कुछ भी नहीं बोला। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूं। मेरे दिल में एक लम्हे के लिए आया कि इस जंगल में जाने वाली कहानी का किस्सा यहीं पर ख़त्म करूं। कहीं ऐसा ना हो कि दादी ठीक कह रही हों और मैं उनकी बात पर यकीन ना करके खुद को एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा लूं। एक तरफ मेरा दिल ये चाह रहा था, जबकि दूसरी तरफ मेरा दिल ये भी कह रहा था कि अब अगर मैं डर गया तो कभी भी इस राज से पर्दा नहीं हटा पाऊंगा। लिहाजा बेहतर यही है कि एक बार जाकर देख लिया जाए। और फिर अगले ही दिन मैंने वहां से जाने का फैसला किया, लेकिन मैं चाहता था कि मैं रात के वक्त यहाँ से निकलूं। इसी वजह से मैं वहाँ से अपने एक दोस्त के घर आ गया, क्योंकि अगर मैं अपनी दादी के घर रहता तो वो कभी भी मुझे रात के वक्त यहाँ से निकलने ना देती। न जाने मुझे लग रहा था जैसे दादी को मेरे इरादों का इल्म हो गया है। इसीलिए रात के वक्त जब मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था, वो तेज़ी से मेरे पास आई और मुझे एक तावीज़ देते हुए कहने लगी, मुझे एक बात का तो अंदाज़ा है कि जब तक तुम अपनी बात पूरी नहीं कर लोगे तब तक तुम्हें इस पर यकीन नहीं आएगा, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। इसीलिए ये तावीज़ तुम अपने गले में डाल लो, ताकि अगर बाद में ऐसा कोई मसला हो तब तुम महफूज रह सको। मैंने उनसे चुप करके वो तावीज़ लिया और अपने गले में डाल लिया। मैं उन्हें यह भी ना कह सका कि आपको गलत फहमी है, मैं रात के वक्त वहाँ से नहीं जाऊँगा, लेकिन ना जाने क्यों मैं अपनी दादी से झूठ नहीं बोल सकता था। जब मैंने उनसे तावीज़ लिया तो दादी मुस्कुराने लगी और मेरे माथे पर प्यार करते हुए बोली, अल्लाह ताला मेरे प्यारे बेटे का निगहबान हो। और फिर गहरी सांस लेकर कहने लगी, काश तुम्हारे दादा भी उस दिन मेरी बात मान लेते तो आज उनके साथ ये सब कुछ ना होता। मैं उनसे दादा के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास वक्त कम था। लिहाजा मैंने उनसे इजाज़त ली और वहाँ से अपने दोस्त के घर आ गया और वहीं पर मैं रात होने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही रात हुई मैं उस जंगल की तरफ चल निकला जहाँ से होकर मैंने अपने घर जाना था। न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि आज मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब काफ़ी देर तक मुझे कुछ भी महसूस ना हुआ तो मैंने गुस्से से तावीज़ निकालकर अपने साथ ही बैग में डाल दिया। उसके बाद ही थोड़ी देर बाद मुझे यूं महसूस हुआ जैसे सड़क के दरमियान कोई खड़ा है। मैंने जल्दी से गाड़ी रोकी। मेरा दिल भी तेज़ी से धड़क रहा था, लेकिन मेरी गाड़ी को ब्रेक नहीं लगी और गाड़ी उस लड़की से जाकर टकराई, जिसकी वजह से वो लड़की बेहोश हो गई। उसे बेहोश होता देखकर मैं परेशान हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने उसे जल्दी से गाड़ी में डाला। पहले मैं उन्हें घर वापस जाने के बारे में सोचा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि दादी परेशान हो जाएं। इस वजह से मैंने गाड़ी आगे की तरफ बढ़ा दी। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने देखा कि रास्ते में ही एक अस्पताल मौजूद था। ये अस्पताल मैं ज़िंदगी में पहली बार देख रहा था। पहले कभी मैंने ये अस्पताल नहीं देखा था। वहाँ पे अस्पताल बना देखकर मैं हैरान हुआ, लेकिन फिर मैंने शुक्र अदा किया कि शुक्र था मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। मैंने तेज़ी से उस लड़की को सहारा देकर गाड़ी से उतारा और अस्पताल में चला गया। अस्पताल का अमला बहुत ही अजीब था। वो सारे मुझे अजीब व गरीब नज़रों से देख रहे थे। यूं लग रहा था जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। बल्कि अगर मैं ये कहता कि वो मुझे अजूबे लग रहे थे तो इसमें कुछ भी गलत ना होता। एक और चीज़ जो मैं नोट कर रहा था वो ये थी कि पहले वो मुझे देखकर बुरे बुरे मुंह बनाते, लेकिन जब वो उस लड़की को देखते तो दोबारा से संजीदा हो जाते और मेरे ऊपर से नज़रें फेर लेते। अस्पताल जाकर मुझे पता चला कि वो लड़की हामला है और फिर नर्स मुझे ये कहने लगी, तुम्हारी बीवी तुम्हें बुला रही है। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग गुम हो गया। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई थी, फिर वो मेरी कौन सी बीवी की बात कर रही थी। बाद में मुझे पता चला कि वो लड़की वावेला मचा रही है कि वो हामला है और उसका बच्चा मेरा ही बच्चा है। मैं वहाँ से जाने लगा, लेकिन नर्स मुझे वहाँ से जाने नहीं दे रही थी और कह रही थी जब तक आप अपनी बीवी को यहाँ से लेकर नहीं जाएंगे तब तक आप नहीं जा सकते। मैंने दोबारा उस लड़की की तरफ देखा जिसने आंखों ही आंखों में मुझे कोई इशारा किया।
जब मैं उसके पास जाकर खड़ा हुआ तो उसने मुझे कहा कि फ़िलहाल यहाँ से चलो, बाहर जाकर मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। और फिर वो मुझे अपने साथ लेकर जंगल में ही गायब हो गई। जंगल में काफ़ी देर चलने के बाद एक बहुत बड़े बंगले के सामने जाकर रुकी। जंगल के बीच एक और खूबसूरत घर देखकर मैं दोबारा से हैरान हुआ, लेकिन जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुआ, सामने का मंजर देखकर मुझे लगा मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। पूरा घर मुर्दों से भरा हुआ था और वो सारे मुर्दे रस्सी से लटक रहे थे, यानी उनमें से एक भी जिंदा नहीं था। और फिर मेरे देखते ही देखते उस लड़की के चेहरे के तासुरात बदलने लगे और वहाँ पर एक खौफनाक शक्ल आ गई। ये वही लड़की थी जिसको मैंने जाते हुए देख चुका था। उस लड़की ने मुझे बताया कि ये सारे वो मर्द हैं जिन्हें वो पसंद करती थी, लेकिन उन मर्दों ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। उसने मुझे भी शादी की पेशकश की, लिहाजा उस वक्त मैंने अक्लमंदी का मुजाहिरा किया और कहा, ठीक है, मैं अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वो बदरू मुस्कुराने लगी और खुश हो गई। मैंने उसे कहा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ गाड़ी की तरफ चलना होगा, वहाँ से मैंने अपना मोबाइल उठाना है। मेरी बात सुनकर उसने मेरी तरफ घूरा, जैसे उसे मुझ पर शक हो। मैंने उसे कहा, फिक्र मत करो, तुम मेरी सोच से भी ज़्यादा ताकतवर हो, इसी वजह से मैं तुम्हारे हाथ से बचकर नहीं जा सकता। ये सुनकर वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, बात तो तुम ठीक ही कह रहे हो। फिर मैं उसे अपने साथ लेकर चलने लगा। मैं आगे आगे चल रहा था जबकि वो पीछे पीछे चल रही थी। अचानक मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी, कभी भी किसी बदरूह के आगे नहीं चलते, क्या पता कब वो तुम्हारा दिल निकाल ले। उसकी बात सुनकर मैं दोबारा से खौफजदा हो गया। मैंने उसकी तरफ देखा जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और कहने लगी, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, चलो तुम। उसका ये मजाक भी मेरी रूह को खौफजदा कर गया था। जैसे ही मैं गाड़ी के करीब पहुंचा, मैंने जल्दी से अपना बैग उठाया। जैसे ही मैंने बैग उठाया, वो लड़की मुझसे थोड़े दूर जाकर रुक गई और मुझे कहने लगी, इसमें क्या है, तुमने मुझे धोखा दिया है। दरअसल इस बैग में दादी अम्मा का तावीज़ था। मैंने जल्दी से वो तावीज़ निकाला और गले में डाल लिया, जबकि वो लड़की चीखने लगी। वो मुसलसल मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी तरफ बढ़ नहीं पा रही थी। उससे बेहतर था कि मैं तुम्हें जान से मार देती, लेकिन मैंने तुम्हारा यकीन किया और हमेशा की तरह मुझे फिर धोखा ही मिला। लेकिन मैं वादा करती हूँ कि अब अगर तुम कभी भी मेरे हाथ आए तो तुम्हें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से गायब हो गई, जबकि मैं जल्दी से गाड़ी में बैठा और अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। उस वक्त मेरा दिल खौफ से कांप रहा था, जबकि मैं दिल ही दिल में यही सोच रहा था कि शुक्र है मैंने दादी अम्मा से तावीज़ ले लिया था। अगर उस वक्त मैं तावीज़ ना लेता तो शायद आज मैं भी उन मुर्दा मर्दों में से होता। उसके बाद मैंने कभी भी उस गांव की तरफ रात के वक्त सफ़र नहीं किया और मेरा उन चीज़ों पर यकीन भी पुख्ता हो गया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।